بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ لوگ کس طرح سے جنازہ چھوڑ کر بھاگ گئے اور ان پر کیا ایسا واقعہ پیش آیا کہ وہ چیخو پکار کرنے لگے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ کس طرح سے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور بھاگنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ کس طرح سے چیخو پکار کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو وہ لوگ جو ہیں وہ بھاگتے نظر آئیں گے، کچھ لوگ رینگتے ہوئے نظر آئیں گے اور کچھ لوگوں کی چیخو پکار کی آواز بھی آپ کو سنائی دے گی۔ یہ ایک علاقہ تھا جس جگہ پر قبرستان کے ملحقہ علاقہ تھا، جہاں پر جنازہ جو ہے وہ لے کر جایا جا رہا تھا۔ جب لوگوں نے وہاں پر چیخو پکار کی تو سب حیران اور پریشان ہو گئے کہ یہ ایسا کیا واقعہ پیش آیا۔ تو بنیادی طور پر یہ جو واقعہ پیش آیا، شہد کی مکھیوں نے وہاں پر حملہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ تمام کے تمام لوگوں کو اس نے کاٹنا شروع کر دیا، اور جب اس نے تمام لوگوں کو کاٹا تو شہد کی مکھیوں نے بہت سارے لوگوں کو بھی زخمی کر دیا۔ تو بنیادی طور پر اگر بات کی جائے تو لوگ جنازہ چھوڑ کر کیوں بھاگے، تو شہد کی مکھیوں کے حملے کی وجہ سے لوگ جنازہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ شہد کی مکھیوں کا جو حملہ ہے، اس طرح کے واقعات بہت زیادہ جگہوں پر پیش آتے رہتے ہیں۔ یہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ کا واقعہ ہے، جہاں پر لوگ موجود تھے اور انہوں نے حملہ کر دیا۔ لیکن اسی طرح سے ہائی اسکول نمبر 2 ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی ایک اور واقعہ پیش آیا کہ شہد کی مکھیوں نے طالبات پر حملہ کر دیا تھا۔ 25 سے زائد طالبات کو مکھیوں نے ڈس کر زخمی کر دیا۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نمبر 2 ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ایک درخت کے ساتھ لگے شہد کے چھتے کو کسی نامعلوم بچے نے پتھر مار دیا اور اس کے بعد پھر مکھیاں بفر گئیں۔ مکھیوں نے چھتے سے اڑ کر اچانک اسکول میں پڑھائی میں مصروف طالبات پر حملہ کیا اور 25 سے زائد طالبات کو ڈس لیا۔ اطلاع ملنے پر ڈپٹی کمشنر معظم اقبال سپرا کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو احمد خاور شہزاد ریسکیو اور میڈیکل ٹیموں کے ہمراہ فوری موقع پر پہنچ گئے اور متاثرہ طالبات کو ابتدائی طبی امداد دیتے ہوئے اسپتال بھی منتقل کیا گیا، جہاں انہیں ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ یہ اس نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس طرح کے اور واقعات بھی پیش آتے رہتے ہیں۔ مختلف جگہوں پر مختلف صورتحال میں مکھیاں جو ہیں، شہد کی مکھیاں حملہ کرتی رہتی ہیں۔ سری لنکا اور جنوبی افریقہ کے درمیان جب جوہانسبرگ میں میچ کھیلا جا رہا تھا تو تب بھی شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا اور 2 مرتبہ شہد کی مکھیوں کی مداخلت پر یہ 2 مرتبہ میچ روکا گیا۔ کھلاڑیوں اور امپائرز نے لیٹ کر خود کو مکھیوں کے حملے سے بچایا۔ سیریز کے تیسرے ون ڈے میچ کے دوران اس وقت صورتحال دلچسپ ہو گئی جب بے شمار شہد کی مکھیوں نے گراؤنڈ پر ڈیرے ڈال دیے۔ ایسا ایک بار نہیں ہوا بلکہ 2 بار ہوا، جب شہد کی مکھیوں کے غول کے آنے کی وجہ سے کھلاڑی زمین پر لیٹ گئے۔ سری لنکن اننگز کا 27واں اوور جاری تھا کہ مکھیوں کی آمد پھر شروع ہو گئی اور کھلاڑی میدان بدر ہو گئے۔ گراؤنڈ سٹاف نے آگ بجھانے والے آلات کی مدد سے ان مکھیوں کو بھگایا اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی کوشش کی آگاہ کی کہ ان کو بھی نقصان نہ ہو۔ شہد کی مکڑیاں پکڑنے والوں کو بلایا گیا جنہوں نے مکھیوں کو بھگایا اور میچ 1 گھنٹے بعد دوبارہ شروع ہوا۔ جنوبی افریقہ اس میچ میں 7 وکٹوں سے کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا، یعنی 7 وکٹوں سے جنوبی افریقہ کو کامیابی ملی تھی۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں جن واقعات میں شہد کی مکھیوں کا حملہ جو ہے ہوا۔ شاہ کوٹ کا علاقہ ہے کسووال اور اس کا نواحی گاؤں ہے L24/14۔ وہاں پر گورنمنٹ پرائمری اسکول بوائز کے بچوں پر شہد کی مکھیوں کا حملہ ہوا اور مکھیوں کے حملے سے 30 بچے، ہیڈ ماسٹر اور 4 ٹیچر جو ہیں وہ متاثر بھی ہوئے، جبکہ 6 بچے بے ہوش ہو گئے۔
रेस्क्यू 1122 की बरवक्त कार्रवाई हुई और जराये के मुताबिक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फॉर बॉयज में एक दरख्त की टहनी पर शहद की मक्खियों ने छत्ता बना रखा था, जो कि अचानक दरख्त से टूटकर नीचे गिर गया, जिससे शहद की मक्खियों ने स्कूल में मौजूद बच्चों पर हमला कर दिया, जिसमें 30 बच्चे, हेडमास्टर और 4 टीचर मुतासिर हुए। 6 बच्चे बेहोश हो गए, जबकि रेस्क्यू 1122 ने बरवक्त कार्रवाई करके बच्चों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी फराहम की। इसी हवाले से और भी ऐसे वाकयात पेश आए हैं। मसलन इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी है, वहां भी शहद की मक्खियों का हमला था। बागबान जो था वो जाँ बहक हो गया। ये 4 मई 2017 का वाकया है, जब इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के गार्डन में शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में एक बागबान जो है वो जाँ बहक हो गया, जबकि 5 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात भी आई। तफसीलात ये फराहम की गई कि बोटेनिकल गार्डन में किया गया, जिसके नतीजे में गार्डन में काम करने वाला बागबान मोहम्मद गुलजार जाँ बहक, जबकि इसके 5 साथी जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और भी ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जिन वाकयात को इंसान सुनता है तो हैरान और परेशान रह जाता है कि ये जो वाकयात हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं। ऐसा ही एक वाकया अमेरिका में पेश आया। अमेरिका में मैच हो रहा था और मैच भी बेसबॉल का हो रहा था, तो बेसबॉल के मैच के दौरान में भी वहां पर मक्खियों ने हमला कर दिया। ये अमेरिकी रियासत थी एरिजोना। एरिजोना में बेसबॉल मैच के दौरान शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया और एरिजोना में बेसबॉल का मैच जारी था कि अचानक शहद की मक्खियों ने खेल में रुकावट डाल दी। मक्खियों के हमले से खिलाड़ी डर गए, बाज घुटनों के बल बैठ गए और बाज चेहरा बचाने के लिए मैदान में उल्टे लेट गए। अब देखना ये है कि क्या ये हकीकत है और देखना ये है कि क्या इन तमाम वाकयात से क्या चीज साबित होती है और इन तमाम वाकयात में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन वाकयात से इंसान सीख सकता है, जिन बातों से इंसान सीख सकता है। मुख्तलिफ वाकयात पेश आते रहते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, और ऐसा मतलब अमेरिका में भी, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि वाकयात पेश आते रहे। लोधरा में भी जो है ये वाकया पेश आया कि स्कूल पर शहद की मक्खियों ने हमला किया। प्रिंसिपल समेत तकरीबन 50 से ज्यादा तलबा और तालिबात क्या हो गए, वहां पर बीमार हो गए और उनको जो है मकामी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। ये कोई आम वाकया नहीं है। लोधरा में गवर्नमेंट स्कूल सरदारवाला के ग्राउंड में तलबा ने दरख्त पर मौजूद शहद की मक्खियों को पत्थर मारा था, जिस पर शहद की मक्खियों ने हमला कर दिया और स्कूल प्रिंसिपल में समेत 50 तलबा को काट कर अस्पताल पहुंचा दिया, जहां उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी दी गई। ये भी बताया जाता है कि स्कूल में शहद की मक्खियों के मजीद 3 छत्ते भी मौजूद हैं। अब अगर कोई और हमला करेगा या मजीद हमला किया जाएगा तो फिर ये भी कहा जा सकता है कि वो 3 के तीनों छत्ते वहां पर मौजूद जितने लोग हैं उनको तबाह बर्बाद कर देंगे। अमेरिका में भी ऐसा ही एक और वाकया पेश आया। शहद की मक्खियों ने पार्क में मौजूद अफराद पर हमला कर दिया और अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस में वाक़ एक पार्क में शहद की मक्खियों की भीड़ ने पार्क में मौजूद अफराद को पार्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। शहद की मक्खियों ने डंग मारकर 20 अफराद को जख्मी भी कर दिया, जिनमें से 3 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और ये कोई हैरान कुन बात भी नहीं है कि शहद की मक्खियां हमला नहीं करती या हमला नहीं कर सकती। शहद की मक्खियां हमला करती हैं और वो हर एक शख्स पर ही कर सकती हैं। ऐसा ही एक वाकया जो है वो पेश आया अर्जेंटाइन में। कभी कभी बात छोटी और आम सी चीजें भी खिलाफ तवक्को सामने आकर आपको हैरान और परेशान कर देती हैं। जैसा कि पहले बताया कि मकामी जो मक्खियां होती हैं, जो शहद की मक्खियां होती हैं, ये बहुत ज्यादा आपको परेशान करती हैं और बहुत ज्यादा आपको हैरान भी कर देती हैं, तकलीफ भी पहुंचाती हैं। इस वक्त भी एक ऐसा ही वाकया था जब मकामी न्यूज रीडर वहां पर मौजूद थी, बराह रास्त मौसम का हाल बता रही थी कि अचानक उनके चेहरे की रंगत बदलती नजर आई और आंखें खौफ से फैल गई। चेहरा इस रंगत को कैप्चर कर लिया कैमरे ने, जिसके बाद उनकी सिर्फ एक ही आवाज सुनी गई। वो स्टूडियो में घुस आने वाली शहद की मक्खी को देखकर खौफजदा हुई और उसे भगाने के लिए ए करती रही थी। मगर जब
मक्खी भागती नजर आई तो वो खुद स्क्रीन से आउट हो गई। वाज़ेह हो कि सुलेपर्स इंस्टाग्राम पर स्टार समझी जाती हैं, जहां उनके मद्दाहों की तादाद 8 लाख से ज्यादा है। वो अक्सर अपनी दिलचस्प तस्वीर भी इंस्टाग्राम पर जारी करती रहती हैं। ये वाकया अर्जेंटाइन के TYC स्पोर्ट्स चैनल पर पेश आया। बाद में अपनी मज़ाक़खेज़ घबराहट का खुद भी मजाक उड़ाया और नाजरीन से उन्होंने माजरत भी की। इन तमाम वाकयात से एक बात तो वाज़ेह तौर पर साबित हो जाती है कि इन वाकयात में बहुत हद तक सच्चाई है और ये तमाम सच्चे वाकयात हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये बात भी है कि शहद की मक्खियों क्यों काटती हैं इंसान को। शहद की मक्खियों के काटने की वजूहात क्या बनती है। अगर शहद की मक्खियां मतलब आपको काटती हैं तो इसकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद आप क्या करनी चाहिए, या आपको कौन से ऐसे तरीकाकार है जिन तरीकाकार को इस्तेमाल करते हुए आपको बचना चाहिए। शहद की मक्खियों से किस तरह से बचा जा सकता है, शहद की मक्खियां किन किन अवामिल की वजह से आपको काटती हैं और किस तरह से आप इनसे बच सकते हैं, इस चीज का भी आपको जानना चाहिए। एक ऐसा ही वाकया पेश आया था अमेरिकी रियासत मिशिगन के इलाके ग्रैंड ब्लैंक में, जहां एक शख्स ने शहद की मक्खियों के छत्ते से निजात पाने के लिए अपने घर को ही आग लगा दी। अमेरिकी रियासत मिशिगन के इलाके ग्रैंड ब्लैंक में एक शख्स ने शहद की मक्खियों के छत्ते से निजात पाने के लिए अपने घर को ही आग लगा दी थी। घर का मालिक मक्खियों से निजात के लिए धुएं वाले बम का इस्तेमाल कर रहा था कि गिराज में आग भड़क उठी, जो देखते ही देखते फैल गई। पड़ोसियों की मदद से फायर फाइटर्स को बुलाया गया, जिन्होंने फौरी तौर पर मौका पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, जिसके बायस घर को ज्यादा नुकसान न पहुंचा, जबकि घर का कोई मकीन भी जख्मी नहीं हुआ, लेकिन गिराज मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। आपने ऐसा नहीं करना, आपने एहतियात करनी है और अपने घर को भी आग नहीं लगानी।